Hello students, welcome once again. So let us finish the chapter that is remained. Last time we discussed about elements. The number of elements known at present are more than 100. 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made. Majority of the elements are solid. So at present देखें हमारे पास जो elements हैं there are more than 100 elements जिनमें से जो 92 हैं they are naturally occurring नेचर में मिलते हैं वो rest are made by humans and the the elements mostly they are solids. 11 elements are in gaseous state at room temperature. 11 जो है वो gaseous state में है. 2 elements are liquid at रूम टेम्परेचर मर्करी एंड ब्रोमीन. ये दो जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर. एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा जब टेम्परेचर होगा तो ये जो एलिमेंट्स है ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं या लिक्विड बन जाते हैं. नेक्स्ट इज कंपाउंड्स. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. So what is compound? It is a substance that is made up of या composed of two or more elements chemically combined with one another. एक दूसरे के साथ combine करते हैं वो in a fixed proportion. एक fixed proportion होगा उनका तब जाके क्या बनेगा एक कंपाउंड बनेगा. What do we get when two or more elements are combined? Activity. Divide the class into two groups. Give 5 gram of iron filling and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the groups. ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. एक मिक्स एंड क्रश आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर. मिक्स एंड क्रश आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर. Heat this mixture strongly till red hot. Remove from the flame and let the mixture cool. Check for magnetism in the material obtained. Bring a magnet near the material and check if the material is attracted toward the magnet. Compare the texture and color of the material obtained by the groups. Add carbon disulfide to one part of the material obtained, stir well and filter. Add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to other part of the material obtained. Perform all the above steps with both the elements iron and sulfur separately. So ये कुछ एक्टिविटी दी है देखें. उसके बाद क्या बता रहा है ये क्या करना है आपने. Now answer. Did the material obtained by the two groups look the same? क्या वो सेम था? Which group has obtained a material with magnetic properties? किसमें magnetic property आई? Can we separate the components of the material obtained? क्या हम उनके component को separate कर सकते हैं? On adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, did both the groups obtain a gas? क्या वो कोई gas release हुई वहाँ पे? Did the gas in both the cases smell the same or different? So, after the activity, the gas obtained by group 1 is hydrogen. जो गैस मिली वहाँ पे निकली वो हाइड्रोजन है. It is colorless, odorless and combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class. The gas obtained by the group 2 is hydrogen sulfide. It is colorless gas with smell of rotten eggs. So देखिए जो गैस वहाँ पे रिलीज हुई ग्रुप ए के केस में वो हाइड्रोजन थी. इट इज़ कलरलेस, कोई कलर नहीं है उसका, ऑर्डरलेस ना ही स्मेल है, एंड कंबस्टिबल है वो, मतलब उसमें कंबशन हो सकती है, आग लग सकती है. सो इट इज़ एडवाइज, इसीलिए एडवाइज किया जाता है कि डू नॉट डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस इन द क्लास बिकॉज इट कुड हार्म यू.
Whereas in case of the group second, the gas released is a hydrogen sulfide. It is colorless gas with the smell of rotten egg की जो है इसमें स्मेल होती है. You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties. अलग अलग प्रॉपर्टी थी वहाँ पे. Though the starting material were the same, हालांकि जो स्टार्टिंग का मटेरियल था दोनों में वो सेम था. Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of Group 2 a chemical change has taken place. तो जो ग्रुप 1 था वहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आए. whereas in Group 2 there is a chemical change, mean there is formation of some new substance. The material obtained by Group 1 is a mixture of two substances. The substances given are the elements iron and sulfur. So जो मटेरियल था ग्रुप 1 को जो मिला, it is a mixture of two substances का था वो, that is iron और sulfur. The properties of the mixture are same as that of its constituent. और इस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो सेम थी जो कि इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है. जो आयरन की प्रॉपर्टी होंगी या जो सल्फर की होंगी वही प्रॉपर्टी क्या है, वो उस मिक्सचर की होंगी. द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड, वो एक कंपाउंड था. ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड्स विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. अब इसमें क्या जो कंपाउंड बना हमारे पास, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल ही अलग थी इन एलिमेंट से. द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, जो कंपोजिशन थी वो सेम थी थ्रू आउट. We can also observe that the texture and the color of the compounds are the same throughout. ये दोनों चीज़ें भी सेम थी इनकी. Thus we can summarize the physical and chemical nature of a matter in the following graphical organizer. So आगे बताया आपके पास. तो देखिए हमारे पास दो चीज़ों का डिफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ. मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं देखें. What is mixture? Elements or compounds just mix together to form a mixture. एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड. इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, इसमें आपके एलिमेंट भी मिल सकते हैं और कंपाउंड भी. वेर एज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. यहाँ पे क्या है, एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे केमिकली और एक नया सब्सटेंस बनेगा वहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक केमिकल चेंज होगा. अब मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन इसकी वेरी करेगी. द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स होगी, वो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो ऑलवेज फिक्स रहेगी उसकी कंपोजिशन. फिर अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. जो मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा देखिए, प्रॉपर्टी किसकी होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस है जिनसे वो बना है उन्हीं की प्रॉपर्टी होगी उसमें मिक्सचर में. द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. जो नया सब्सटेंस बनेगा बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी. द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजीली बाय फिजिकल मेथड. सेपरेट किया जा सकता है उनको. कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. बाय रिएक्शन ही इनको हम सेपरेट कर सकते हैं. सो हियर इज़ द गिवन यू टू यू द टेबल, दैट इज़ द समरी. कि जो मैटर है आपका देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड और गैसेस. इसमें आपके पास प्योर सब्सटेंसेस आएंगे और मिक्सचर आएंगे. इन प्योर सब्सटेंसेस वी हैव एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. Elements cannot be broken down to simpler substances. We can't broke them. Compound होते हैं have fixed composition, अभी अभी हमने पढ़ा. Can be broken down into elements by chemical और electrochemical reactions. इनको ब्रेक किया जा सकता है. एग्जाम्पल देखें, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन. यहाँ पे वाटर है आपका देखिए फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगी. मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट. फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो वाटर है उसमें ऑलवेज क्या होंगे, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होगा ऑलवेज. होमोजीनस और हिट्रोजीनस मिक्सचर हमने पढ़े थे. यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी. एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट देखें आपका हिट्रोजीनस मिक्सचर, शुगर एंड सॉल्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ द डे. With this we have finished this chapter. Here is the summary of the chapter that you have learned throughout this chapter.
तो ये आपने रीड करनी है जो ये समरी दी है। द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।